Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you SPCC. So, students, today we are here to see Standard 11th SPCC Part 2, Chapter number 1, Meaning and Types of Secretary. Rather than that, already we have seen a part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter. So students, without wasting the time, let us move on with a short discussion of the topic that we have seen on the previous video. So previously we have discussed about the introduction and the meaning of the chapter, in which we have seen that according to a human is an intellectual person or a creature in the world, and continuously he is always doing the development of himself. Rather than that, if you are seeing, the human being has been developed himself in such a way that today he needs assistance to complete up his work on behalf of him. Such a development process of the human being has been seen up. After that, we have seen that the modern commerce came to emerge up after the industrial revolution. So in that, the first portion that was started up was sole proprietorship, partnership, joint sectors, and many more businesses and the companies were being started up. If you are seeing, when one portion was having the problem or one form was having the problem, due to that the another form came into the existence. In this manner, the development of the commerce has been seen up. Even according to the war and the political boundaries, if you see, there came a limitations of the peoples, and the new ideology, different ideology which developed in many other countries were being exchanged as an information and technology, due to which the multinational companies came into the existence. So in this manner, the multinational companies also came up here. If you sit at your house and use a foreign company's mobile, or if you eat chips and use the toothpaste, then you must consider that the multinational companies have taken over your countries also, and even that much development we have seen in the business portion, in the commerce portion. So if you are talking about a company, you know that company needs the shareholder to invest. The real owner of a particular company are the shareholders, but even you know that they cannot manage the company, as the shareholders are being spread over all over the country and over out of the countries also. So due to that, the board of the directors are there to manage the company, but they cannot manage the day-to-day life. That's why a secretary is appointed to do or see the daily affairs of a company. As the company is an person, we can say that it is an artificial personality which indulges with the documentation, even contracts and many more things. That's why due to law we consider it as an artificial person. So the functions of the company are being maintained up by the secretary. The secretary is an important person in an company. Even if you are seeing, after 1956, after the independence in 1956, the new rule of the company was being seen up, and slowly the amendment was also being seen up in the company's law. So on the year 2013, if you are seeing, the amendment of the company's law was being seen up, and the last amendment was entered in the date of 25/05/2015 in the books of the company. After that, we have seen the meaning of the company secretary. Who is a secretary? If you are seeing, the word secretary is an English word, but in Gujarati the word was being seen as mantri. In the loyal life, or the royal king were having a personal assistant as a mantri who used to keep the secrecy of the king and do the correspondence of the king. In this manner, if you are seeing, the king were having the secretary. Even in the Mughal emperor, if you are seeing, they were having the wazir such as Birbal, and in Hindu side or the Hindu kings, if you are seeing, the Vidur was there, Shri Shushmant was there. In this manner, many good mantris were being well known by the people still today. After that, if you are seeing the Roman Empire, in there also the person who was doing the
correspondence was the king, was considered as the scribe. So what is the major thing of the secretary? The major thing of a secretary is to keep the personal and the secret of the king to himself only, not to reveal to anyone else. That is the main portion or the work of a secretary, and do the correspondence on behalf of his master is the meaning of the secretary. So up till this we have seen in a very detailed manner. So today we are going to see the further portion of the chapter. So without wasting the time, let us move on with the further portion of the chapter in a very detailed manner. So students, now let us move on with the definition of a secretary. Secretary can be defined as follows. In the general sense, secretary means a person who performs the activities of maintaining secrecy, observes correspondence, documentation, keeps records of agreements, and undertakes other activities as directed on behalf of another person, एसोसिएशन, कॉरपोरेशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन. सो सेक्रेटरी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो सेक्रेटरी को डिफाइन करने के लिए जनरल सेंस में एक कॉमन मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो सेक्रेटरी मतलब एक ऐसा इंसान जो एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है सीक्रेसी को मेंटेन करने का, जो सीक्रेट है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने का. करस्पॉन्डेंस, लेटर की करस्पॉन्डेंस यानी लेटर लिखना या जो आता है उसको रीड करके उसको रिप्लाई देना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको देखना, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना, और इवन जो भी एग्रीमेंट हो रहा है या जो भी एक्टिविटी एक इंसान कर रहा है यानी उसका जो बॉस कर रहा है, एसोसिएट करता है, कॉरपोरेशन करता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन करता है, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना, ये एक सेक्रेटरी का काम होता है. सो लेट अस सी द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज मीनिंग. अ पर्सन हु कंडक्ट करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ एनी सोसाइटी, कॉरपोरेशन और एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, कीप रिकॉर्ड्स एंड मेंटेन एंड कैरी आउट डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अपॉइंटेड इज कंसिडर्ड एज सेक्रेटरी. सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से एक ऐसा इंसान जो लेटर राइटिंग का करस्पॉन्डेंट, कम्युनिकेशन एक सोसाइटी या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, सोसाइटी यानी हम जो रहते नहीं, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, एक कॉरपोरेशन और पब्लिक इंस्टीट्यूशन का रिकॉर्ड रखे, मेंटेन करे और इवन उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन का हर एक चीज़ों का ध्यान रखे और सिर्फ उसी लिए उसको अपॉइंट किया जाए तो उसे सेक्रेटरी बोला जाता है. लेट अस सी द सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट मीनिंग. अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, ये तो हमने देखा नॉर्मल डेफिनेशन और ऑक्सफोर्ड का डेफिनेशन. एक कंपनी एक्ट का क्या डेफिनेशन होता है? Secretary means constitutional qualified person appointed to observe the responsibility of the duties as assigned to the secretary according to the statute and perform of other administration and ministerial duty. अब कंपनी एक्ट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, सेक्रेटरी मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन यानी लीगल क्वालिफाइड इंसान जिसे हम अपॉइंट करते हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे ये ड्यूटी दिया जाता है कि वो सेक्रेटरी के हिसाब से जो भी उसका स्टेटस या परफॉर्मेंस है दूसरे अदर एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्रियल ड्यूटी उसके ऊपर ध्यान दे, वो एक सेक्रेटरी माना जाता है. सो अबाउ डेफिनेशन से हम क्या पॉइंट्स डिराइव कर सकते हैं, नीचे वो दिया गया है. लेट अस सी दैट. फ्रॉम द अबाउ डेफिनेशन पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन, दे मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्रेटरी. सो ऊपर जो डेफिनेशन दिया गया है उसके ऊपर से नीचे दिए गए पॉइंट्स को हम डिराइव यानी निकाल सकते हैं और इवन इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्रेटरीज भी बोला जा सकता है. सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्रेटरी. नंबर 1, सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड. तो सेक्रेटरी को प्रॉपरली क्वालिफाइड होना चाहिए. कंपनी सेक्रेटरी के लिए यू नो दैट CS किया हुआ होना चाहिए. अगर आप प्रॉपरली क्वालिफाइड की बात करते हो तो कंपनी सेक्रेटरी को CS कंप्लीट किया होना चाहिए. सेकेंड, द सेक्रेटरी नोन पर्सनल मैटर्स एंड सीक्रेट्स ऑफ हिज मास्टर कीप इट्स कॉन्फिडेंशियल. तो आपको पता है सेक्रेटरी को जो मास्टर यानी कंपनी के जो ओनर है उसकी सारी पर्सनल मैटर, बिजनेस रिलेटेड और सीक्रेट्स पता होना होता है, इसीलिए उसको कॉन्फिडेंशियल यानी सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए. ये एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सेक्रेटरी का माना जाता है. He performs whatever duty is assigned to him. उसको जो भी ड्यूटी मास्टर यानी बिजनेस ऑफिस के थ्रू दिया जाता है यानी बॉस जो ओनर है उसके थ्रू उसको जो भी बिजनेस दिया जाता है यानी उसको जो भी काम दिया जाता है वो उसको करना
पड़ता है। इट डज नॉट हैव एनी ऑफ हिज ओन ऑथोरिटी, ऑथोरिटी इज असाइन टू हिम। उसका खुद का कोई ऑथोरिटी नहीं होता है, सेक्रेटरी का खुद का कोई ऑथोरिटी नहीं होता, भाई ये तेरा काम ही है, तुझे ही करना है, वैसा कोई उसका ऑथोरिटी नहीं होता है। बट उसको जो जो काम दिया जाता है ऑथोरिटी के, यानी लेटर का करस्पॉन्डेंस आपको देखना है, मैनेजर पे आपको ध्यान देना है, क्या एग्रीमेंट हुआ ये आपको देखना है, ऐसे उसको जो जो ऑथोरिटी दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो उसको फुलफिल करना पड़ता है। The secretary is helpful to constitute documents and contracts. He does correspondence on the behalf of his master. He preserves documents, contracts properly. तो सेक्रेटरी का एक काम होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर उसको ध्यान देना है। इवन जो भी करस्पॉन्डेंस वो अपने मास्टर के बिहाफ में करता है, उसको उस डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को उसको प्रिजर्व यानी संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मास्टर नहीं होता, उसको बोल दिया जाता है भाई उसने ये लेटर लिखा है, उसके रिप्लाई में ये दे दो, तो उसको फॉर्मेट में उसको सोच के अच्छी तरीके से लिख के वापस उसको करस्पॉन्ड करना पड़ता है, इसीलिए उस चीज़ को उसको संभाल के रखना पड़ता है। ओनली ए लिविंग पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। तो ऊपर के टॉपिक से हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ जीता जाता ह्यूमन बींग को ही हमें एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। यहाँ पे उसका डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द टाइप्स ऑफ द सेक्रेटरी। We have seen early the world secretary was used to be the person who were corresponding on the behalf of ruler. As society developed, commerce also developed and the significations of the word secretary become wider. Now word secretary is used in the exhaustive meaning. In the present time, leader, actor, minister, businessman, etc. keeps secretary in different institutions like cooperative society, labor union, cricket board, trade association, government corporation, government department. The position of secretary is very important. The institution probably would not be able to function without secretary. Generally in Hindi, prime minister is also known as Pradhan Mantri and the chief prime minister is known as Mukhya Mantri. From the above secretary points, secretary can be classified in the following two types. So हमने earlier यानी मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी पे ये देखा, जो वर्ड सेक्रेटरी है इसका मतलब वो इंसान जो रूलर यानी जो राजा होता है उसके बिहाफ में करस्पॉन्डेंस यानी जो लेटर्स वगैरह का करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन का करस्पॉन्डेंस दे के उस इंसान को जो है सेक्रेटरी माना जाता है। पर जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, लोग डेवलप हुए, उस तरीके से सेक्रेटरी का जो मीनिंग है ये भी कहीं ना कहीं वाइडर तरीके से डेवलप हुआ। आज अगर हम सेक्रेटरी की बात करते तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव मीनिंग मतलब बहुत वाइड मीनिंग में देखा जाता है। प्रेजेंट टाइम में उस टाइम में सिर्फ राजा के ही मंत्री होते थे, बट आज की अगर हम बात करते, लीडर ले लो, पॉलिटिशियंस ले लो, एक्टर ले लो, मिनिस्टर्स ले लो, बिजनेसमैन ले लो, ये लोगों की सीक्रेट को बनाए रखने के लिए इनके भी एक सेक्रेटरीज होते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इंडिविजुअल की बात करें, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लेबर यूनियन है, क्रिकेट का बोर्ड है, ट्रेड एसोसिएशन है, गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे भी जो है पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, यानी यहाँ पे भी सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस देखा जाता है। नॉट ओनली इंस्टीट्यूशन बट हर एक फंक्शन सेक्रेटरी के बिना पॉसिबल नहीं है। हिंदी में अगर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, हु इज प्राइम मिनिस्टर, उसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, यानी पूरे कंट्री का एज ए सेक्रेटरी वो काम करता है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बोला जाता है। इस तरीके से सेक्रेटरी को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, दो वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो कौन से दो वे में, लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर इन द फर्दर पोर्शन। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या होता है, तो प्राइवेट सेक्रेटरी, जैसे मैंने बोला मैं हूँ, मुझे लगता है मेरा एक सेक्रेटरी होना चाहिए तो उसे प्राइवेट सेक्रेटरी माना जाएगा। मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी, जैसे मोदी जी के एक सेक्रेटरी होगा तो उसे मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी माना जाता है। कंपनी सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं, एज पर एज ए CS किया हुआ एक इंसान कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है। वो एक जनरल सेक्रेटरी हो सकता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हो सकता है। दो तरीके के कंपनी सेक्रेटरी
सेक्रेटरीज देखे जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, तुम्हें पता है फॉरेन कंट्री में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे एम्बेसी होता है, तो उसका एक सेक्रेटरी होता है। डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, हर एक डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी देखा जाता है, जैसे ट्रेड एंड यूनियन का एक सेक्रेटरी, इनवर्ड डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी, तो ऐसे एक डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन, सो सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी, ठीक है, स्टूडेंट्स यूनियन, यूनिटी के लिए यूनियन, उनका जो यूनियन चलता है उसके लिए एक सेक्रेटरी है। क्लब सेक्रेटरी होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होते हैं, लेबर यूनियन सेक्रेटरी होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी होते हैं। इस तरीके से एक पर्टिकुलर एसोसिएशन के लिए जो सेक्रेटरी देखे जाते हैं उन्हें सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन माना जाता है। अब हर एक का मीनिंग वाइज हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्रेटरी। Private secretary is also known as PA or sometimes as confidential personal secretary. Such type of secretaries attends phone calls, observes correspondence on behalf of his master. Moreover, he looks after the administration work, makes arrangement of scheduled appointment and reminds of this busy master. In the present time, film artists, industrialists, chief executives, officers, political leaders and business tycoons, institutions appoints private secretary. Professionals like doctor, solicitors, chartered accountant also appoints PA. When their functions become wider, honest, trustworthy persons are generally appointed as a private secretary. So private secretary की अगर हम बात करते हैं, इन्हें PA भी बोला जाता है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को पर्सनल रखने के लिए पर्सनल सेक्रेटरी को रखा जाता है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इंसान माने जाते हैं। ये जो सेक्रेटरी है इनका काम क्या है, जैसे बिजनेसमैन बहुत बिजी है, फ़ोन कॉल भी नहीं अटेंड कर सकता है, तो उसके बिहाफ में फ़ोन कॉल अटेंड करना और उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करना, उसका जो लेटर होता है उसको देखना, मास्टर के बिहाफ में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखना, शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट देखना, इस तरीके से अपने बिजी मास्टर के लिए पूरा डे का शेड्यूल प्लान करना एक सेक्रेटरी का काम होता है। इवन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, फिल्म आर्टिस्ट को ले लो, इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लो, चीफ एग्जीक्यूटिव को ले लो, ऑफिसर्स को ले लो, पॉलिटिकल लीडर्स को ले लो, बिजनेस टाइकॉन्स को ले लो, ये लोग अपना एक पर्सनल सेक्रेटरी रखते हैं। जब इनका काम बहुत फैल जाता है और ये खुद अकेले उस तक पहुंच नहीं पाते, तब इन्हें एक पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ती है। जो इंसान बहुत ही हॉनेस्ट हो, विश्वास के लायक हो, वैसे इंसान को पर्सनल सेक्रेटरी के तरीके से जो है अपॉइंट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर। सो फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट डिस्कशन और रिविजन ऑफ द पोर्शन दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the definition of the secretary. We have seen definition in a very detailed manner. In general sense, secretary means a person who is dealing with the banking correspondence, the correspondence of the business, and the secrecy of a master is considered as a secretary. We have seen the definition by Oxford University. So when a person is qualified and is able to do the correspondence on the behalf of the master and maintains the confidential portion and have the portion of the preservance of the agreement and contract is considered as a portion of secretary from the Oxford University. Even we have seen according to the Companies Act. Company Act के हिसाब से हमने ये देखा, जो इंसान वेल क्वालिफाइड है, जिससे नॉलेज है, स्किल है, रेदर देन जो कंपनी का हर एक फंक्शन को अच्छे से ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेसमैन कर सकता है, उसे जो है, और जो इवन कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रख पाए, उस इंसान को, इवन ट्रस्टवर्दी इंसान को हम सेक्रेटरी बोलते हैं। इस तरीके से हमने मीनिंग देखा। ऊपर जितने मीनिंग देखे गए उसके ऊपर से हमने कैरेक्टरिस्टिक भी देखा। कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये देखा कि वो एक जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसे वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसे कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, रेदर देन दैट उसे हर एक काम को करस्पॉन्डिंग अच्छी तरीके से उसको आना चाहिए, रेदर देन दैट उसको एक जीता जागता इंसान होना चाहिए। इस तरीके से हमने डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक को भी एक 6 पॉइंट्स के अंदर देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन द types of the
करस्पॉन्डेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ द करस्पॉन्डेंस यानी टाइप्स ऑफ द सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज कितने टाइप्स के होते हैं। सो सेक्रेटरी की टाइप की अगर हम बात करते हैं, उसके पहले हमने देखा कि बिजनेस जो है इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप होने लगा। ऊपर ही हमने देखा कि राजा महाराजा जो थे उनके बिहाफ में जो करस्पॉन्डेंस करता था उसे जो है सेक्रेटरी माना जाता था। बट जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जो सेक्रेटरी वर्ड है उसका भी डेवलपमेंट देखा गया। सेक्रेटरी वर्ड की डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे ये देखा कि धीरे धीरे उनका वर्कलोड भी वो है बढ़ने लगा। सिर्फ और सिर्फ करस्पॉन्डेंस के अलावा बिजनेस की मोस्ट ऑफ अफेयर्स के बारे में ध्यान रखना, उसके एग्रीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजों के ऊपर अपना नजर बनाए रखना, ये एक सेक्रेटरी का काम हो जाता है। इवन उनको कोई उनका पर्टिकुलर काम नहीं होता, अथॉरिटी उन्हें जो भी काम देता है वो काम उन्हें करना पड़ता है, जो कि हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये एक खूबी भी देखी थी। तो उस तरीके से देखो तो आज के ज़माने में जैसे कॉमर्स डेवलप हो गया, उस टाइम पे अगर आप ध्यान से देखो तो इवन एक्टर्स ले लो, फिर जो है एक्टर्स के साथ साथ तुम डॉक्टर्स ले लो, पॉलिटिशियंस ले लो, बिजनेस टाइकॉन्स ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लो, यहाँ हर जगह एक सेक्रेटरी है। इवन आप प्रधानमंत्री को भी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर को मुख्यमंत्री, इस तरीके से उन्हें भी एज ए सेक्रेटरी ऑफ अ कंट्री ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके का टाइप्स देखा। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में मेन 7 टाइप देखा गया था, जिसमें प्राइवेट आ जाता है, एसोसिएशन आ जाता है, कंपनी आ जाता है, सेक्रेटरियल आ जाता है, सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी आ जाता है। इस तरीके से हमने उसको भी डिटेल में देखा। इवन एसोसिएशन की बात करें तो स्टूडेंट्स एसोसिएशन का यूनियन, लेबर यूनियन, उसमें भी एक 6 to 7 टाइप्स हमने डिटेल में देखा। उसके बाद हमने प्राइवेट सेक्रेटरी यानी पीए, प्राइवेट असिस्टेंट के बारे में डिटेल में देखा। यानी मैंने जैसे बता एक एक का मीनिंग नीचे डिटेल में दिया गया है, जिसमें से एक हमने डिटेल में आज देखा जो कि प्राइवेट असिस्टेंट का मतलब ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट माने जाते हैं। एक पर्टिकुलर अपने मास्टर की, यानी ये लीगली कोई इनकी जरूरत नहीं। जैसे मैं हूँ, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे लगता है मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए जो मेरा पूरा शेड्यूल बनाए रखे, मुझे कितने बजे किससे बात करना है, किससे क्या करना है क्या नहीं, वो सारी देख रेख रखे, वैसा एक जो असिस्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे मास्टर की हर एक फोन कॉल से लेके डॉक्यूमेंटेशन, शेड्यूल, कब किससे मिलना है उनको बार बार याद दिलाना, नेक्स्ट ये मीटिंग है, नेक्स्ट ये करना, इस तरीके का काम जो है एक पर्सनल असिस्टेंट का देखा जाता है। इवन ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को अपने तक रखे, इसलिए प्राइवेट असिस्टेंट हमेशा होनेस्ट और ट्रस्टवर्दी इंसान को ही बनाया जाता है। एक्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, हर किसी का आजकल एक पर्सनल असिस्टेंट देखा जाता है। इन्हें पीए भी शॉर्ट में बोला जाता है। तो यहाँ तक का टॉपिक डिटेल में आज हमने देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन अ वेरी वेल मैनर. I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.